دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک سجائے، بال پونی میں قید کیے، ریڈ ہیلز میں ٹک ٹاک کرتی آئی تھی۔ اور ہو بھی کون سکتا تھا، وہ دا مافیا لیڈی ظاہرہ جمانی تھی۔ او ویلکم پارٹنر، ارمغان نے صوفے پر بیٹھے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے ہیں مسٹر شیڈو؟ آئی ایم فائن، تم کیسی ہو ظاہرہ؟ اور اچانک میں نے سوچا سرپرائز دوں، آؤ بیٹھو۔ مافیا لیڈی تمہیں کیا ضرورت تھی آنے کی؟ زوہان نے کہا تھا، اور عرش تو پہلے ہی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا ادھر آ جاتی ہوں، ویسے بھی اب وہاں سب ٹھیک ہے۔ چپکو کہیں کی، عرش منہ بناتا بڑبڑایا تھا۔ السلام علیکم۔ نور دل کمرے سے باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھی تھی، چہرے پر ابھی بھی حجاب تھا۔ تم، ظاہرہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ نور دل ہے، ریاض بلوچ نے اسے کڈنیپ کیا تھا، ارمغان نے بتایا تھا۔ او تو کہاں گیا وہ؟ ظاہرہ نے پوچھا تھا۔ اپنے انجام کو پہنچ گیا، ارمغان نے کہا تھا۔ پینتھر بھی وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ لڑکی تم ہمارے ساتھ رہتی ہو تو اپنے چہرے سے تو حجاب ہٹا دیا کرو، عرش نے کہا تھا، جس پر پینتھر نے اسے گھورا تھا۔ جب وہ نہیں اتارنا چاہتی تو تجھے کیا ہے، کام سے کام رکھ، پینتھر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہم چلے جائیں گے، نور دل نے نظریں چکائے کہا تھا۔ اور کہاں جاؤ گی تم؟ پینتھر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم آپ کو کیوں بتائیں، کہیں بھی چلے جائیں گے۔ تم کہاں سے ہو؟ ظاہرہ نے پوچھا تھا۔ پاکستان سے۔ او اچھا، میں سب کے لیے کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، عرش نے کہا تھا۔ ہم بنا دیتے ہیں، نور دل نے کہا تھا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ زوہان نے اس سے پوچھا تھا۔ جی ہمیں بنانا آتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، عرش آرڈر کرو، پینتھر نے ایک نظر اسے دیکھے عرش سے کہا تھا۔ بھائی وہ کہہ رہی ہے تو، زوہان نے کہا تھا۔ میں نے کہا نا نہیں تو نہیں، پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ آپ روز باہر سے منگواتے ہیں؟ نور دل نے پوچھا تھا۔ ہاں کبھی کبھی بھائی بنا دیتے ہیں، زوہان نے کہا تھا۔ ہم بنا دیتے ہیں، نور دل جگہ سے اٹھی تھی۔ بریانی بنانی آتی ہے تمہیں؟ عرش نے اس سے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ہمیں آتی ہے، پھر بنا دینا۔ جی۔ عرش کی اتنی ڈٹائی پر پینتھر نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ پہلے وہ اسے منہ بھی نہیں لگا رہا تھا، اور اب کھانے کی بات آئی تھی تو جھٹ سے اس نے کہہ دیا تھا۔ عرش، پینتھر نے دانت پیسے تھے۔ واٹ بھائی، وہ اپنی مرضی سے بنا رہی ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے۔ بریانی کھائیے گا، مجھے نہیں، عرش نے پینتھر سے کہا تھا، جس پر وہ عرش کو گھورتے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس کی اپنے بھائیوں کے علاوہ کسی سے نہیں بنتی تھی۔ نور دل نے کھانا تیار کر لیا تھا اور ٹیبل پر بھی لگا دیا تھا۔ آہا ہا ہو، کیا خوشبو ہے، چلو بھائی کھانا کھائیں۔ عرش اٹھتے سیدھا ٹیبل پر پہنچا تھا۔ لڑکی تم کہیں اور بیٹھ جاؤ نا، اب تمہارے سامنے کیسے میں کھاؤں، عرش نے کہا تھا۔ عرش، پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ ہم لے جاتے ہیں، نور دل اپنی پلیٹ لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عرش لگتا ہے تو تمیز بھول گیا ہے اور مجھے سکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، پینتھر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے، عرش نے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ آئندہ تم نے اس سے اس لہجے میں بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا بھائی ہے، پینتھر غصے سے وہاں سے اٹھا تھا۔ دیکھا، اس لڑکی کی وجہ سے آج بھائی نے مجھ پر غصہ کیا، عرش نے کہا تھا۔ تو تم نے بھی تو منہ پھاڑ کر کہا تھا
अब उसने एक तो खाना बनाया, ऊपर से तुम। अरमगान ने कहा था। तो क्या कह दिया भाई, आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। नूरदिल अपने कमरे में बेड से टेक लगाए बैठी थी। सामने उसने खाना रखा था, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले थे। वो रो रही थी। अम्मी, अब्बू, वो रो दी थी। तभी पैंथर दरवाजा खोले अंदर आया था। नूरदिल ने चेहरा छुपाए जल्दी से निकाब किया था चेहरे पर और अपने आंसू साफ किए थे। नूरदिल, आप ऐसे ही अंदर क्यों आ गए? ओके, रो क्यों रही हो? वो अब बैठ चुका था। हम नहीं रोते। तो झूठ भी अच्छा बोल लेती हो। हम झूठ नहीं बोलते। तो बताओ फिर क्यों रो रही हो? कहा ना नहीं रो रहे हम। खाना क्यों नहीं खा रही? अब हर काम आपसे पूछ कर करें? हाँ, आप हैं कौन और हम चले जाएंगे। वो नजरें झुकाए आंखों में नमी लिए बोली थी, जस्ट शट अप नूरदिल, और अब तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो गुस्से से धाड़ा था। हम जाएंगे, चुप करके खाना खाओ, समझी? मैं ये फजूल बात अब ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। वो गुस्से से कहते ही चला गया था। गहरी रात हो चुकी थी। चांद की मध्यम रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे की दीवारों पर लरज रही थी। सारा घर खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे हर कोई नींद की आगोश में जा चुका हो। हवा की हल्की सरसराहट और दीवार घड़ी की टिक के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नूरदिल आहिस्ता से बिस्तर से उतरी। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, मगर उसने अपने हवास काबू में रखने की कोशिश की। आहिस्ता से उसने अपनी चप्पल पहनी और आहिस्ता से चलने लगी, ताकि कोई आवाज पैदा ना हो। दरवाजे तक पहुंचने में उसके सांस इतने मध्यम हो चुके थे कि खुद उसे भी महसूस ना होते। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जरा सी भी चिरचिराहट होती तो लगता जैसे सारा घर जाग जाएगा। बाहर का सहन सुनसान था, अंधेरों में लिपटा हुआ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक अजीब सी हिम्मत भी थी जो उसे आगे जाने पर मजबूर कर रही थी। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि यकदम एक साया उसके सामने उभरा। वो साकत खड़ी रह गई। अंधेरे में भी वो वजूद इतना जाना पहचाना था कि नूरदिल का खून जैसे रगों में मुंजमद हो गया। पैंथर, वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर मास्क और सरापा खामोश खतरा। नूरदिल का सांस अटक गया। पैंथर ने कदम आगे बढ़ाया। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज सर्द थी, लेकिन हर लफ्ज में छुपा हुआ दबाव नूरदिल को झंझोड़ने लगा। नूरदिल ने लब खोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ गए। नूरदिल की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर पैंथर के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। कहा था ना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। आंखों में वही तासुर था जैसे वो नूरदिल की हर हरकत पहले से भांप चुका हो। नूरदिल ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त फौलाद जैसी सख्त थी। छोड़े हमें, आपको कोई हक नहीं के। हक? पैंथर ने एक तल्ख हंसी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम नहीं जानती कि बाहर कितना खतरा है, और अगर जानती हो तो शायद तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं। नूरदिल की सांस तेज हो गई। हमें जाने दे, हम किसी की कैदी नहीं हैं। पैंथर ने उसे करीब खींच लिया। नूरदिल का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। पैंथर की गिरफ्त उसके बाजू पर इतनी सख्त थी कि लग रहा था जिल्द पर नील पड़ जाएंगे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। आप हमें कैद नहीं कर सकते, नूरदिल ने गुस्से से कहा, अपने बाजू को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए। पैंथर ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर सख्ती बरकरार रही। तुम मुझे नहीं जानती नूरदिल। मैं वो शख्स हूँ जो अंधेरे में दुश्मनों का शिकार करता है, और तुम सोच रही हो कि चुपके से मेरे घर से निकल जाओगी। नूरदिल की आंखों में चमक उभरी, जैसे अपनी बेबसी छुपाने के लिए उसने हिम्मत बांधी हो। आप हमें मजबूर नहीं कर सकते, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। पैंथर की नजरें और गहरी हो गईं।
तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं लेकिन मेरी मर्जी से यहाँ रहना होगा। नूरदिल ने दांत खींच लिए। आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। पैंथर ने अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि वो उसकी सांसों की तपिश महसूस कर सकती थी। उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त ने नूरदिल को हिलने भी ना दिया। मैं मजबूर नहीं कर रहा नूरदिल, मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूँ। उसकी आवाज सरगोशी जैसी थी, मगर हर लफ्ज में खतरा छुपा था। बाहर तुम्हारी आजादी नहीं, तुम्हारी कैद इंतजार कर रही है। तुम नहीं जानती कि वो दरिंदे क्या कर सकते हैं जिनसे मैंने तुम्हें बचाया है। नूरदिल की पलकें दरस गईं, मगर वो नजर मिलाते हुए बोली, और आप कौन है? हम तो आपको भी नहीं जानते ना। पैंथर के चेहरे पर कोई तासुर न आया, बस उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। तो जानने की कोशिश भी मत करो नूरदिल, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। पैंथर ने उसे झटके से छोड़ दिया। नूरदिल ने उसे देखा जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, शायद उसकी आंखों में, शायद उसके लहजे में, मगर पैंथर की आंखें हमेशा की तरह सर्द और बेरहम थी, जैसे उसमें कोई जज्बात न हो। सो जाओ नूरदिल। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते रुका और बगैर मोड़े बोला, क्योंकि अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें रोकने के लिए नरम रवैया नहीं अपनाऊंगा। नूरदिल का दिल जैसे लम्हा भर को रुक गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और पैंथर कमरे से बाहर निकल गया। नूरदिल खामोशी से बेड पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाए। हम यहाँ से चले जाएंगे, उसने खुद से सरकोशिश की, जैसे अपने आप को यकीन दिला रही हो कि ये जगह उसके लिए कैद नहीं बनेगी। सुबह हो चुकी थी, सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर नूरदिल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही नाश्ते के लिए, ना किसी से बात करने के लिए। वो बस खामोश बैठी रही, अपनी उलझनों में गुम। दरवाजे पर दस्तक हुई। नूरदिल ने सर नहीं उठाया, मगर दस्तक के बाद दरवाजा खुल गया और एलिया अंदर दाखिल हुई। नूरदिल, तुम अभी तक जहाँ हो, नाश्ता नहीं करोगी? एलिया ने हैरानी से पूछा। नूरदिल ने आहिस्ता से सर उठाया। आप जाएं, हम आते हैं। नूरदिल ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए आहिस्ता से बिस्तर से उतरी। दिल में एक ही ख्याल था, यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह। वो तो उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद की थी, इसलिए वो उनकी शुक्रगुजार थी। नूरदिल ने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरी। उसका दिल अभी भी अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। जब वो हॉल में पहुंची तो नाश्ता पहले ही मेज पर लग चुका था और सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, मगर जैसे ही उसकी नजर मेज के सिरे पर पड़ी जहाँ पैंथर पहले से मौजूद था, उसके कदम वहीं रुक गए और फिर वो खामोशी से मेज के करीब आई और कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर नाश्ता उठाया और बाकी सबसे जरा फासले पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी नशिस्त का इंतखाब इस तरह किया कि उसका चेहरा किसी को नजर ना आए। नूरदिल ने जैसे ही पैंथर को अपनी तरफ आते देखा, उसका दिल जोर से धड़का। वो फौरन नाश्ता छोड़कर दोबारा निकाब दुरुस्त करने लगी, जैसे खुद को उसकी नजरों से छुपाना चाहती हो। पैंथर उसके करीब आकर बैठा और चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। फिर एक गहरी ठहरी हुई आवाज में बोला, उतार दो इसे नूरदिल। नूरदिल के हाथ वहीं रुक गए। उसने निकाब मजबूती से थाम दिया, जैसे वो उसके हुक्म को नजरअंदाज करना चाहती हो, मगर पैंथर की नजरों में ऐसी गिरफ्त थी कि वो खुद को बेबस महसूस करने लगी। ये हमारा पर्दा है, हम इसे नहीं उतारेंगे, वो हल्की मगर जिद्दी आवाज में बोली, नजरें झुकाए हुए। पैंथर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर धीरे से बोला, ये जो रात को गलती की है, ये दोबारा मत करना। हमने कोई गलती नहीं की। वो आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोली, हाथ अभी तक अपने निकाब को थामे हुए। पैंथर की नजरें उसके चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो नूरदिल के हर लफ्ज को परख रहा हो। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बोला, वाकई? तो फिर इसे गलती ना समझूं तो और क्या समझूं? नूरदिल ने एक लम्हे के लिए सांस रोकी, फिर संजीदगी से बोली, हमने वही किया जो हमें सही लगा।
पैंथर ने सर हिलाया जैसे उसे नूरुद्दीन की ये जिद पहले से मालूम हो। तुम्हें लगता है ये सही था? हमें अपने फैसले लेना आते हैं, हमें किसी की हिदायत की जरूरत नहीं। नूरुद्दीन ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। वो कहते ही उसके पास से उठकर चला गया। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।